Hey guys, once again welcome back to my channel. My name is Chakresh Tiwari and in today's video we will be talking about how to prepare for digital marketing interview. So in this video my main focus will be on functional part, like how to prepare for that functional thing. I'm not going to focus on behavioral thing, this kind of question like tell me something about yourself, your strength, weakness, experience. I'm not going to talk about these things. I will be just focus on functional part, how to prepare for that functional questions which are going to be asked in your interview. So first of all, I would say for preparation thing there is no any right strategy. Like if you are having your own strategy and you are going with that, then just be consistent with your own strategy. There is no such a strategy, like there is no such a ideal strategy for preparing thing. But in this video I will give you an idea like how should you go with preparation part. So first of all, I would recommend you to go for all the assignments you have made, because in the interview they do ask about your experience with platform. Like if you are a student of paid media, so if you have worked something on Facebook ads, so they will ask you like how they can ask you some kind of assignment. If you remember your assignment, like you have worked with Oryx brand, you have worked with Hershey's project, so you can say like I have created target audience, I have created this thing, I have set the media plan. So you are having all over the idea of making a strategy of a media plan. So first of all, go with all the assignment, go through all the assignment. Like you should remember what you did in a Craftshell, or you from where you are pursuing your digital marketing course, or whatever you did. If you are having any kind of experience, so you should remember what you did. Like मीडिया प्लान में आपको कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर इंटरव्यूअर पूछ रहा है आपसे कि what you did in this like if you have any brand and you have to make strategy, then how will you go with that? So you can just put the example like I have created in the assignment I were given this kind of situation, the project was about Spotify or McDonald's, this kind of thing. Like you can put your ideas, in that interview. So फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू ऑल द असाइनमेंट. फर्स्ट पॉइंट मैं यही बोलूँगा कि सारे असाइनमेंट्स देख लो, किस तरह से है, रिवाइज कर लो, ताकि आपको एक एक्सपीरियंस रहे, आपको एक नॉलेज रहे कि आपने क्या किया हुआ है. आप इंटरव्यू में बोल सकें कि आपने क्या प्लेटफॉर्म के साथ में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है. प्लेटफॉर्म का आपको नॉलेज है, गूगल एड्स का आपको नॉलेज है, फेसबुक एड्स का आपको नॉलेज है. सो पहली चीज़ यही बोलूँगा, असाइनमेंट सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए, लाइक आपने क्या किया है ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म का जैसे मैंने बोला गूगल एड्स या फेसबुक एड्स, अगर आप पेड मीडिया से या एसईओ से भी हैं तो प्लेटफॉर्म का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है. लाइक अगर आप CBO ऑन कर रहे हैं तो क्या होता है, ऐड शेड्यूलिंग क्या है, ऐड शेड्यूलिंग कब हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर है कि प्लेटफॉर्म में फेसबुक एड्स में किन प्लेटफॉर्म पर हम ऐड शो कर सकते हैं. तो प्लेटफॉर्म का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो आई वुड सजेस्ट यू टू रिवाइज इट, लाइक प्लेटफॉर्म के साथ में चलते रहो कि एक बार देखो कि कैसे क्या वर्क कर रहा है, कौन सा फंक्शन कहाँ पर है और कैसे वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें रिवाइज कर लो, देख लो कि कहाँ पर क्या है. और मोस्ट ऑफ द थिंग इज़ लाइक ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड. अगर आपको कुछ नहीं पता है फेसबुक एड्स का, लाइक हम फेसबुक एड्स के प्लेटफॉर्म पर कुछ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको उस पर कुछ डाउट भी है, लाइक आपको नहीं पता है कि ये है क्या, ऐड शेड्यूलिंग क्या है, तो यू विल जस्ट गो देयर, लाइक कर्सर को आप वहाँ पर ले जाएंगे, आप एक छोटी सी डेफिनेशन वहाँ पर पॉपअप आ जाएगा कि ये है. तो उससे भी काफ़ी नॉलेज होती है, लाइक आपको पता चलता है कि ये है क्या चीज़ एक्चुअल में. लाइक यू डोंट हैव टू सर्च इट ऑन गूगल और एनीवेयर एल्स. सो प्लेटफॉर्म के साथ में जितना भी आपका हाथ सेट होगा, लाइक आपको प्लेटफॉर्म का जितना भी नॉलेज होगा, उतना इंटरव्यू में आपको हेल्प मिलेगी. आप बता सकते हैं कि कैसे वो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि हाँ बंदे को कुछ आता है, लेकिन इसने प्लेटफॉर्म पे कुछ वर्क कर रखा है, तो उस पर आपका हाथ सेट होना चाहिए. अगर नहीं, मतलब इतना नहीं एक्सपीरियंस है, इतना नॉलेज नहीं, तो एक बार फिर से देख लो, एक बार स्टार्ट करके प्लेटफॉर्म से एक कैंपेन 1-2 सेट करके देख लो कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है. सेकंड चीज़ प्लेटफॉर्म. फर्स्ट चीज़ मैंने बताया असाइनमेंट एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, मतलब सब कुछ पता होगा क्या किया है, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेना कि क्या कर रखा है मैंने, ताकि मैं इंटरव्यू में बोल सकूँ, ठीक है. नेक्स्ट चीज़ प्लेटफॉर्म का नॉलेज होना चाहिए. फिर उसके बाद कैसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है. देखो एक काम आप कर सकते हो, टॉपिक वाइज लेके चलो. लाइक आपने जो भी अभी तक सीखा है टॉपिक वाइज आप पढ़ते चलो. बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, आज हमने बिडिंग स्ट्रैटेजी का पूरा रिवाइज कर लिया. उसके बाद फिर मैंने बिडिंग स्ट्रैटेजी हो गया, मैच टाइप्स कितने होते हैं, मैच टाइप मैंने रिवाइज कर लिया.
फिर निगेटिव कीवर्ड्स का यूज़ कहाँ पर, कैसे, कब, किस लेवल पे, क्यों करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली। एक एक टॉपिक लेके आप चल सकते हो, लाइक टॉपिक वाइज आपके पास कंटेंट होगा, वीडियो होंगे, पीडीएफ होंगी, पीपीटी होंगी, एक एक टॉपिक लेके आप सारा प्रिपेयर कर लो, सारा रिवाइज हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं पूछते हैं, कुछ नहीं पूछेंगे कि, और देखो मेन क्वेश्चन जो होगा प्लानिंग के ऊपर होगा, मीडिया प्लानिंग, वो आपकी स्ट्रेटेजी देखना चाहेंगे, इंटरव्यूअर जो होगा देखना चाहेगा कैसे आप लाइक वर्क कर रहे हैं, उसी में आपकी नॉलेज चेक करेंगे, बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, मैच टाइप्स का यूज़ कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें लाइक एड शेड्यूलिंग, टारगेट ऑडियंस, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछेंगे। तो ये चीज़ें टॉपिक वाइज आप प्रिपेयर कर सकते हो। इतना कर लेना है आपको, पहले असाइनमेंट देख लेना है, प्लेटफॉर्म के साथ में आपका हाथ बहुत अच्छे से सेट होना चाहिए, एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक। उसके बाद आपको ये टॉपिक वाइज सारा रिवाइज कर लो कि क्या है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी नो, बस थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उससे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो डिजिटल मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हमें आ रहे हैं कि नहीं है। लाइक यू विल बी हैविंग सम 20 to 30 और 20, 30, 40 वट एवर द नंबर इज़, आप एक बार वो सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के बेसिस पे, वो सारे क्वेश्चंस एक बार आप रिवाइज कर लो। तो एक बार रिवाइज कर लोगे ना तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं इंटरव्यू में। And if you are feeling any need, like I can create a series of 5 questions every day, like I can create a series of video where मैं 5 क्वेश्चन में लाइक डेली कवर कर सकता हूँ वीडियो में, 5 क्वेश्चन करके डेली मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो, इफ़ यू फील द नीड, लाइक इफ़ यू वांट दिस काइंड ऑफ थिंग, यू कैन जस्ट कमेंट, सो आई विल थिंक अबाउट दैट। एंड अगर ऐसा कुछ मतलब ज़रूरी भी नहीं है, आपको जहाँ से भी लाइक कंटेंट मिल रहा है, जहाँ भी डाउट हो, यूट्यूब करो, गूगल करो या पीडीएफ से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बस ये है कि कोई चीज़ रह ना जाए। ऐसा मत हो कि ये चीज़ मेरे को पता नहीं है, लाइक गूगल एड्स में ऑलरेडी मैंने इतने प्रोजेक्ट बना लिए, इतने असाइनमेंट बना लिए, बट फिर भी मैं नहीं जानता कि इस चीज़ का यूज़ कहाँ पर होता है। बिडिंग स्ट्रैटेजी जैसे है, अब सामने वाला पूछ रहा है कि ये स्ट्रैटेजी कहाँ पर यूज़ करनी है, तो यू आर लाइक ब्लैंक, आई डोंट नो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब चीज़ का नॉलेज आपको ऑलरेडी होना चाहिए। तो बस ये वीडियो कोई बहुत ख़ास नहीं है, बस ये एक आइडिया देने के लिए किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, हो सकता है ये अप्रोच मेरी कुछ उनको ना समझ में आए। सो जिस स्ट्रेटेजी से आप जा रहे हैं वैसे जाइए, बिल्कुल जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं आप वैसे प्रिपेयर करिए। ये एक मैंने एग्जांपल दिया कि इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस कैन बी एन आइडियल स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपेयरिंग डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चंस ऑन इंटरव्यू। सो बस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।